Good afternoon, children. So once again, we are here with chapter 2, Physical Features of India, Geography chapter, and we already discussed the important Himalayas ranges. Like we already discussed like horizontal Himalaya ranges, that these are the Himadri, Himachal, and Shivalik. Then we also discuss about that these are demarcated. These are demarcated through the river valleys from west to east. Yesterday we discussed this topic, that the Himalayas, these are also demarcated horizontally, then vertically. It is from west to east. This is the region of river valley. So we also discuss about that what part, like the Punjab Himalaya, Kumaon Himalaya, Nepal Himalaya, that Assam Himalaya. And some rivers were also discussed कि हमने कहा कि इंडस और सतलुज जो रिवर्स फ्लो नॉर्थ में कर रही है, that part it is also just cover the Punjab area, so that is Punjab Himalaya. Later we discuss about the Kumaon Himalaya. There we discuss about the Satluj and Kali River. Kali River, which is originated in Nepal, but it flow on the border of Uttarakhand. That part is known as Kumaon Himalaya. Then Kali River to Tista River. Tista River originated in Sikkim. That part it is known as Nepal. Then Tista River to Dihang River, it is known as the Assam Himalaya. So in this way, we come to know that four parts of the Himalayas through the that is a vertical, we also see, then horizontal, west to east. So today we will just discuss about the Purvanchal ranges. Purvanchal ranges, like we everybody know that Himalaya, which starts from the north, from the western side. And if we go back to the history of the Himalayas, we come to know that because of the Texas Sea, and this is the one, it is also said that it's the offshoot of Pamir Plateau. It is just north of the Himalayas, Pamir Plateau. And the ranges of these Himalayas not only in India but also in western to eastern side. So in this way, these Himalaya ranges, we already understand the features of these Himalaya ranges like the Himadri, Himachal, and Shivalik. Because of all the stretches of these Himalayas from west to east, it is known as totally Himalaya. And the ranges which is in the eastern side, it is called the Purvanchal ranges. Purvanchal, according to its name, it is situated in east side, that is, it is called the Purvanchal ranges. Now we will discuss some important topics of this Purvanchal ranges. कि Purvanchal ranges क्या है, किस तरह से located है इंडिया में, हमने according to the name, this is in eastern side. ठीक है, तो अब अगर मैप आपको सबको दिख रहा होगा, ये जो हिमालय का स्ट्रेच है, ये जो स्ट्रेच चल रहा है ना, ये पूरा स्ट्रेच चल रहा है हिमालय का, ये जो साइड में अरुणाचल प्रदेश और ये जो ईस्टर्न साइड के जो स्टेट्स है ना, ये बच्चों जिसमें मैं मार्कर से मार्क कर रही हूँ, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या है, ईस्टर्न. ये जो पार्ट है ये ईस्टर्न साइड है और इसी को क्या कहते हैं, पूर्वांचल. अब हमें एक चीज नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है कि ये जो हिमालय यहाँ से स्ट्रेच हुए थे, ये चलते जा रहे हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ आके ये नीचे डाउनवर्ड हो गए साउथ की तरफ से. ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जो हिमालय वेस्ट से शुरू हुए ये डाउनवर्ड कैसे हुए. तो एज यू नो कि यूरेशियन प्लेट क्या है, बहुत वेट में ज्यादा है, इसलिए वो स्टैटिक है. और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है, वो मूवमेंट कर रही है लाइट वेट में, तो वो जाके यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होती है. उस सिचुएशन में कोलाइजन की वजह से यहाँ पर एक जगह है नमसा बरवा, यहाँ नमसा बरवा से ये जो रेंजेस हैं वो नीचे की तरफ आ जाती है. एक रीजन ये है. प्लस यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, तिब्बत से एक रिवर जाती है, ठीक है, सांगपो. ये जो रिवर जा रही है, ये देखो ये रिवर जा रही है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है. जब ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसको दिहांग कहते हैं और यहाँ पर ये दिहांग गॉर्ज बनाती है. इस दिहांग गॉर्ज की वजह से क्या होता है कि ये रेंजेस जो है पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस पार्ट, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो पूर्वांचल है ये साउथ में की तरफ जो है वो डाउनवर्ड हो जाता है. तो दिस इज द रीजन. अब
हम इसको हमने ये देखा कि पूर्वांचल रेंजेस ऐसी क्यों है, तो हमें ये बात समझ है। अब पूर्वांचल रेंजेस को के फीचर्स क्या है, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि माउंटेन, जो ये हमारा हिमालयन माउंटेन है, इसका ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न बॉर्डर कौन बनाता है? पूर्वांचल। यहाँ से हमारी बाउंड्री बनती है, दूसरी हमारी नेबरिंग कंट्री से हमको सेपरेट करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं म्यांमार। तो ये हमें सेपरेट कर रही है, ये बाउंड्री जो है नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर हिमालय है, अगर हम वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे डेजर्ट है, अगर हम यहाँ की ईस्ट और वेस्ट कोस्टल एरिया तो यहाँ पर कोस्टल एरिया है। तो इन दिस वे वी सी दैट इंडिया इज द कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये पूरा वेलनेट है, रीजन क्या है? एक वेलनेट है। हम कंट्री से दूसरी कंट्रीज के पास में होते हुए, उनसे कनेक्टेड होते हुए भी हमारी जो है सेपरेट बाउंड्री है और हमारी एक पहचान है। ठीक है, तो हम पूर्वांचल की बात कर रहे थे कि ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो कि मैंने आपको पॉलिटिकल मैप में समझाया था कि हमें कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि that this is the feature that northeastern part of Himalayas, that this creates the boundary of northeastern. Second thing, beyond Bihang Gorge bend sharp to the south. अब बिहांग गॉर्ज, पहले आपको गॉर्ज समझना होगा। ये आपके दो माउंटेन समझ लें, इनके बीच से जो पानी जा रहा है ना, जो ये पार्ट बनता है, ये जो वाटर का पार्ट है, दो आपको पता है कि जो माउंटेन होते हैं है ना, उनके बीच में देखो वैलीज भी बनती है, वैलीज भी ऐसे बनती है, जो स्पेस होता है ना, लैंड स्पेस होता है, तो वैलीज बनाता है। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ से जो इस लैंड से जो पानी आ रहा है, रिवर वैलीज में क्या होता है? वैलीज के अंदर वाटर होती है ना, तो ये जो वाटर आ रहा है इन वैलीज के थ्रू, इसे गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, ये दो माउंटेन का जो सेपरेशन है, उसके बीच का जो लैंड पार्ट है, उसे गॉर्ज कहते हैं। अब यहाँ पर जब दिहांग रिवर एंटर करती है, ठीक है, जब दिहांग रिवर एंटर करती है तो यहाँ पर ये गॉर्ज बनाती है। ठीक है, और ये गॉर्ज बनाती है, और इसी वजह से हमें हमारा जो पूर्वांचल है, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो क्या है? दे आर जस्ट बैक टू द साउथ, साउथ की तरफ क्या है? बेंड है, झुके हुए हैं। ठीक है, ये रीजन समझ आया। थर्ड इसकी और क्या फीचर है? कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक। चलिए इसको समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो हमारा पार्ट है, यहाँ पर क्या है? बहुत सारी रिवर्स भी फ्लो करती है। ठीक है, जिसमें से ब्रह्मपुत्र रिवर मेजर है, इसके अलावा दिहांग रिवर, ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर फ्लो करती हैं। तो ये जो रिवर्स देख रहे हैं आप, रेंजेस है, हिल्स है यहाँ पर, ये रेंजेस से जब पानी नीचे की तरफ आता है, मान लीजिए ये रेंजेस से पानी नीचे की तरफ आया ऐसे ऐसे, तो अपने आप साथ क्या लेकर आएगा? सेडिमेंट। ये जो सेडिमेंट्स है, इन सेडिमेंट्स में ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं? जो है पेबल्स होते हैं, सॉइल होती है, और बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये किससे बना है? सैंडस्टोन से। यानी यहाँ पर जो सेडिमेंट थे, द कोर्स ऑफ टाइम किसमें चेंज हो गए? सैंडस्टोन में। ठीक है, स्टोन बन गए, उसके छोटे छोटे स्टोन बन गए यहाँ पर। तो वो किसका रीजन क्या है? क्योंकि वो रिवर्स है। ऐसे हम नर्दर्न प्लेन्स में पढ़ेंगे कि जो नर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, वो भी इसी तरह से हो रहा है। कि नर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हमने दो तरह से पढ़ा था, एक तो कोलाइजन ऑफ दीज प्लेट्स, सेकेंड थिंग हमने कहा था कि जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट लाती है उसकी वजह से। तो यहाँ पर भी यही है, दैट इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्योंकि हमारे नदियों के साथ, आपको पता है, वाटर के साथ उसकी जो है अपने साथ क्या, जिसमें अगर पानी की वेलोसिटी ज्यादा होती है, अगर वाटर की वेलोसिटी होती है तो वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती है। कभी तो आपने देखा होगा कि जब फ्लड वगैरह आते हैं, मानसून पीरियड अभी चल रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में, बिहार है, इन जगहों पर स्पेशली आपको
फ्लड सुनने को मिलेगा। तो जब भी फ्लड जब भी आते हैं तो ये इतने डिवास्टेटिंग होते हैं कि बहुत ज्यादा लाइफ की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लॉस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सैंडस्टोन होता है तो वाटर की वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो वो उतना डिवास्टेटिंग नहीं होता है और इसी चीज को हम आगे समझेंगे। कंप्राइज ऑफ वेरियस हिल्स। आई टोल्ड यू कि यहाँ पर बहुत सारी हिल्स हैं। कौन कौन से हिल्स हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया पतसई है यहाँ पर, है ना, और नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, मणिपुर हिल्स है। ये सारी की सारी यहाँ पर हिल्स हैं, जो कि इसीलिए हमने इसको क्या बोला, पूर्वांचल, जहाँ पर हिमालय की रेंजेस ईस्ट तक भी है। वो कौन सी हिल्स है? वो ये है। हर स्टेट की, जैसे नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर में मणिपुर हिल्स है, मिजोरम में मिजो हिल्स है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पतई है, दाखला है। ये सारी हिल्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट का फॉर्मेशन करती है और हमारे को एक क्या देती है, एक बॉर्डर देती है, एक बाउंड्री देती है, जिससे कि हम ईस्टर्न साइड से भी प्रोटेक्शन होते हैं। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं, और क्योंकि बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीजन की यहाँ पर क्या है, रिवर्स है और हाई रेनफॉल है, तो एरिया कैसा होगा, चलिए बताइए। जहाँ पर हाई रेनफॉल है, रिवर्स ज्यादा है, तो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में अगर नॉलेज है आपको, तो वहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। तो आपके जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, यहाँ पर भी कि बहुत ज्यादा बारिश होती है। आपको मालूम है मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, गुल्डकी मेघालय के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो रिवर्स है वो रिवर वैली है और यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, वेजिटेशन बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, प्लस टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि हिमालय तो जैसे कि बहुत ऊंचे हैं, बट यहाँ पर जो हिल रेंजेस हैं, जैसे हमारी अरावली रेंजेस है ना, काफी सारी डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान की अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ जाए आप तो सिरोही है, तो अरावली रेंजेस देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो हिल्स, क्योंकि ये बहुत हाइट तक नहीं होती, कम होती है, तो दिस इज गुड फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर टूरिस्ट पर्पसेस ऑल्सो। यहाँ पर जो है कूल क्लाइमेट होता रहने के लिए। तो ऑल दीज रीजन यहाँ पर वैलीज है, डिफरेंट रिवर्स है, दीज आर कॉमन। तो हमने ये चीजें, अब मैं आपको कुछ चीजें और बताती हूँ कि पूर्वांचल जो है ये कहाँ से कहाँ तक इसकी बाउंड्री है, कौन कौन से स्टेट आएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये जो और ये जो है ये पूर्वांचल कहलाता है आपका। इन सारे स्टेट से मिलकर के पूर्वांचल बना है, जो हमारी ईस्टर्न बाउंड्री को जो है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से ये रेंजेस वेस्ट वेस्ट है और फिर साउथवर्ड जो है फ्रंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं नर्दर्न प्लेन। नर्दर्न प्लेन, अब जब थोड़ा सा रिकॉल करो कि माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, रिकॉल द स्टोरी ऑफ माउंटेन। उसमें हमने क्या देखा था कि जो यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की कोलाइजन से जो टेक्सास में था वो कंप्रेस होकर और दूसरा पार्ट जो होगा अपलिफ्ट हो गया और क्या बना। अब हमें मालूम है कि जब ये माउंटेन बना तो कंप्रेशन कहाँ हुआ, उसकी सुपरफिशियल। यहाँ पर पानी, देखिए ये माउंटेन से क्या होता है, माउंटेन से रिवर्स आती है। ये रिवर्स क्या करेगी, यहाँ पर सेडिमेंट इकट्ठा करेगी और ये सेडिमेंट इकट्ठा होगा तो धीरे धीरे इसका डिपोजिशन होता जाएगा। डिपोजिशन होते होते एक रीजन है इसका ये प्लेन बनना। ठीक है, दूसरा रीजन हम क्या कहेंगे, दूसरा रीजन हमें मालूम है कि माउंटेन इज द सोर्स ऑफ ऑल द रिवर्स। ग्लेशियर्स है यहाँ पर। अब ये ग्लेशियर्स क्या करते हैं, पानी से तो नेचर के ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स वाटर जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया ये जो रिवर्स अपने साथ क्या लाती है, सेडिमेंट, सिल्ट, क्ले। ठीक है, अगर वाटर की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये सारी चीजें क्या होगी, उसके साथ फ्लो कर जाएंगे। लेकिन जो बहुत हैवी है, रॉक जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं, वो क्या होगा, उनका धीरे धीरे डिपोजिशन होता रहेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे एक रीजन है कि जो सॉइल है, क्योंकि हमने क्या कहा, जैसे रफ टेरेन होता है, देखो दो बातें, पानी का फ्लो इस पर डिपेंड करता है कि वो टेरेन कैसा है। अगर रफ टेरेन है
टेरेन कैसा है, रग्ड है, यानी उबड़ खाबड़ है, बम्पी है, बीच में बहुत बड़े चट्टाने आ रही है, तो पानी क्या होगा, पानी ऐसे, अगर उसमें चट्टान आ रही है पानी ऐसे, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे, और यही जो है बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है तो पानी एकदम निकल जाता है। तो यहाँ पर यही चीज है कि माउंटेन से आ रहा है तो माउंटेन कैसा है, रग्ड है, रग्ड है, क्या है, पानी से वो धीरे धीरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, और उसका डिपोजिशन होता जा रहा है, सॉइल है, तो इन सॉइल का डिपोजिशन होता जाता है, सेडिमेंट का डिपोजिशन होता जाता है, ठीक है। तो इन दिस एरिया अगर हम कहें कि अदर स्टेट की लोकेशन क्या है, जस्ट सी ये है हिमालय, हिमालय का सबसे कौन सा होगा बच्चों, ये वाला, बताते हैं यहीं पर, हिमालय, हिमालय का साउथ क्या हुआ, ये ठीक है, ये इसका साउथ होगा। तो अगर नर्दर्न प्लेन की लोकेशन को समझना हो तो हम क्या करेंगे, हिमालय के साउथ में शिवालिक की थर्ड जो आउटरमोस्ट रेंज है शिवालिक है, इनरमोस्ट रेंज है हिमालय। तो आउटरमोस्ट रेंज की पोजीशन पर क्या है, प्लेन, क्या, ठीक है, प्लेन की लोकेशन हमें समझ गई कि हिमालय के साउथ में। सेकंड थिंग, in this the river played a very important role in water formation. I think जहाँ पर sediments आते हैं, नलसेट आती है, ये आता है, वो सारी जो है प्लेन की फॉर्मेशन। थर्ड हमने कहा कि this river, especially जो गंगा, यमुना, देश कौन सी रिवर है, वो रिवर है आपकी इंडस, है ना, इंडस रिवर हो गई, गंगा हो गई, ठीक है, यमुना, घाघरा रिवर हो गई, ये सारी रिवर जो है वो ओपन और प्लेन जो है ओपन। इसीलिए मैं आपको प्लेन का भी अगर हम डिवाइड करें ना, तो जैसे हमने हिमालय को डिवाइड किया था ना, ऐसे ही प्लेन का डिवाइड अलग अलग है ना, हाँ प्लेन है इस तरह से। तो वो जो एरिया है ये डिमार्केशन किससे होता है, रिवर से, ठीक है। Then deposition of the aluminium in the surface of that is surface of what, यहाँ पर डिपोजिशन है, और शिवालिक आपको पता है, मैंने भी बताया शिवालिक रेंज है, ये जो शिवालिक रेंज है, ये दो और ये जो शिवालिक रेंज है, इससे कुछ से यहाँ पर क्या जमा हो जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये रिवर्स आ रही है, ये इसके साथ अपनी मिश्रण, that's why I have position on the sediment soil form का, okay, हिमालय brought by the river। अब हमारे माइंड में प्लेन आता है तो हमारे माइंड में सोचते हैं क्या प्लेन, प्लेन नहीं है, इसका रीजन क्या है, यहाँ पर जो सेडिमेंट्स आते हैं वो इसकी टेरेस को जो है अलग अलग तरह से आते हैं, कुछ प्लेन एरिया में है और कुछ रफ में है, अपने स्टेट में है, एक जैसा नहीं है, इसलिए प्लेन को भी हमने अलग अलग पार्ट में दिया है। हाँ, मेजर इसका पार्ट है जो प्लेन में आता है, ठीक है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि रिवर्स ज्यादा सबसे ज्यादा फ्लो करती है, ठीक है, इधर को क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम द दैट साइड इज द एरिया मोर फर्टाइल बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द एंड दिस because of this reason the favorable conditions are there, it is also densely populated. What are the favorable conditions that the people they are mostly wanted to live in this area? Because the resources are there, agriculture practices are more, that is mostly people they do the agriculture practices, their water availability, resources also, climate, that is the communication, climate, transport system is also there, industry location, and many more things there. तो because of all these reasons की population जो है वो यहाँ पर
अगर हम इसकी एरिया की बात करें, ठीक है, देखने में तो हमको क्या लग रहा है कि देखने में तो हमको लग रहा है कि शायद इसका एरिया कम है, बट आपको पता है जब वाटर फ्लो करती है तो बहुत एरिया के अंदर आपकी अगर सामर ये देखी है, अगर सामर ये है तो वहां पर सामर ये देखते हैं तो आप एरिया है वो देखिए तो आप देखिए कितने जो है एरिया के अंदर ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये जो range इसका 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इस सेक्शन यानी हमें मालूम है पंजाब, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, ठीक है, ये और ये जो एरिया जो है वो सारा दैट्स व्हाई यहाँ पर मेन टू में डिवाइड किया है और इसकी जो ब्रेथ है वो भी ब्रेथ क्या है, जहाँ पर हमने प्लेन की बात की कहीं पर ये बहुत आपको चौड़ा दिखेगा, कहीं पर आपको थोड़ा सा नैरो दिखेगा, ब्रेथ में आपको तो दूसरी चीज की जो नजर प्लेन है these are the most fertile ways because of the rivers are less than average soil and this area is also formed by the river. आगे से हम अगर चीज करें हमें एक फैक्टर चीज होगा अब थोड़ा सा और इसमें क्या है कि कुछ जियोलॉजिकल फीचर्स बनाता है, कुछ जियोलॉजिकल फीचर्स क्या है जैसे हमने कहा रिवराइन आइलैंड समझ लीजिए। अब आपको मालूम है कि जब दो रिवर फ्लो करती है, ठीक है, दो रिवर फ्लो करती है तो उनके बीच में लैंड भी जो आएगा, लैंड देखो दिमाग में ये चीज हमेशा रखना on the sea when we are top on the ocean there is a land part of the land is always there so वो जो land है the land is flow of these two rivers और इसका जो land का part है वो जो part है it is formed by the river, वो जो land का part है कौन बनाता है formed by the river, वो कैसे बिकॉज वी नो कि जो रिवर्स है वो फ्लो करती है तो उसके साथ क्या आती है वाटर सेडिमेंट उससे मिलके क्या होता है कि उसका फॉर्मेशन हो जाता है, लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, वो जो लैंड का फॉर्मेशन होता है दो रिवर्स के फ्लो के बाद उसे कहते हैं रिवराइन आइलैंड। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ 9th क्लास, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ इंडिया के एक रिवराइन आइलैंड का नाम बताएं जो दो रिवर्स की वजह से मिलकर बना है, जो बीच का पार्ट लैंड बनता है वो रिवराइन लैंड होता है। जल्दी से हाथ ऊपर करें, रेज योर हैंड। Nobody has idea about it. It's a GK question. Yes, Yash Modi. Okay. Yes, yes. जल्दी बताओ। No idea? Okay, no idea. Okay, I'm telling you. India, not only India, but in the world, पूरे विश्व में जो रिवराइन बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो है इंडिया में, वो है माजुली। माजुली आइलैंड जो है रिवराइन आइलैंड, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है और ये लोकेटेड कहाँ है, ये लोकेटेड है आसाम, ठीक है। तो ये होता है रिवराइन के कैसे जब दो रिवर फ्लो करती है, ठीक है, उसका बीच का जो पार्ट का लैंड का फॉर्मेशन होता है उससे ये आइलैंड बनता है। आइलैंड क्या होता है, फोर साइड्स ऑफ वाटर है ना, लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय फोर साइड्स ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड आइलैंड। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवर्स विच फॉर्म दिस लैंड पार्ट,
बिकॉज ऑफ दैट रिवर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिवराइन लैंड। एक चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज हमने कहा दोआब। दोआब, दोआब का मतलब क्या होता है कि दो मतलब टू, आप मतलब वाटर, तो दो नदियां यानी टू रिवर्स के बीच का जो लैंड होता है उसे कहते हैं दोआब। जैसे हमने कहा पंजाब, तो वो पंजाब, पंजाब में कितनी 5 रिवर है, तो वो जो 5 रिवर से जो पार्ट बना है 5 रिवर्स, उससे क्या कहा है, 5 रिवर से कौन पंजाब बना है, इसलिए इसको क्या बोला है, पंजाब। ठीक है, तो 5 rivers, because of these 5 rivers this land is formed which is known as a पंजाब। तो ये जो दोआब है, ये दोआब भी किसकी वजह से है, इन रिवर्स की वजह से है, कि जैसे हमने कहा गंगा और यमुना। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। हमें मालूम है कि गंगा रिवर उत्तराखंड से फ्लो करती है, ये ऐसे गई और इसी के साथ इसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना। अब इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, बीच में लैंड है, ये जो लैंड है दो रिवर्स के बीच का, उसे कहते हैं दोआब। आई थिंक द थिंग इज क्लियर नाउ, इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तीसरी चीज है डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या हुई, जैसे हमने कहा गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है यमुना, है ना, जो इसी को ट्रिब्यूट कर देती है, आगे अपना पानी इसी को दे देती है। समझ लो बात को। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में भी क्या अंतर है वो भी माइन्यूटली सीख समझ लो। ट्रिब्यूटरी का मतलब ये होता है कि एक मेजर रिवर की दूसरी ट्रिब्यूटरी है और आगे जाके वही जो है उसी मेजर रिवर में मिल जाती है, उसके कहते हैं ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब ये होता है कि एक रिवर फ्लो कर रही है, फिर आगे से वो रिवर जो है उसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई है, वो उसमें मर्ज नहीं करती, वो कहीं और जाके ही मर्ज करती है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है फैल जाती है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो ये जैसे चंबल नदी है ना, वो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, चंबल नदी कोटा में जाती है, ठीक है, फिर वो है यूपी में जाती है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वी कम टू नो कि ये किस तरह से जियोलॉजिकल फीचर्स बनाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। हमने देखा कि जो रिवर्स हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, किस तरह से जो है नॉर्दर्न प्लेन्स बना और उसके बाद उनके जो है जियोलॉजिकल फीचर्स हमने देखा। ठीक है, जितना हमने किया। So let's start the next topic here। आगे इसके साथ ही नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है और पार्ट हम करेंगे कि किस तरह से है। So students, look at the board। I have divided these plains in 3 parts। It is in 3 parts like Punjab plains, then Ganga plains, then Assam plains। You have to understand how these are the plains are demarcated। These plains are also demarcated according to the rivers that flow। As we know that these plains are not only these are in India, but in some parts in Pakistan also। That's why you see that I have drawn this from, it is not on a scale, but you see that this is from starting from Pakistan, क्योंकि अभी जो हमारा पंजाब की हम उसका जो वेस्ट पार्ट है वो वहां पर भी पंजाब ही है, वेस्टर्न पंजाब जो है वो पाकिस्तान में। और ये जो है इसके बाद वाला जो है ईस्टर्न जिसको कहेंगे, इट इज इन इंडिया, देन गंगा, देन आसाम। तो दिस इज द फीचर दैट वी कैन सी कि पंजाब में क्या है, पंजाब प्लेन, बिकॉज इट इज मोस्टली कवर्ड द एरिया ऑफ पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, आपको पता ही है, ये जो पूरा पार्ट है इतना सा, इसीलिए मैंने इसको मार्क किया इतना, ये 2 स्टेट कवर कर रहा है, इट इज नोन एज पंजाब प्लेन। देन वी मूव टू द नेक्स्ट कि यहाँ पर स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में हमें पता है उत्तराखंड से जो रिवर बह रही है गंगा रिवर, और ये जो गंगा रिवर फ्लो कर रही है, अगर पूछे कि प्लेन्स कहाँ तक स्ट्रेचेस है इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट,
तो कौन कौन से स्टेट्स आ जाएंगे आपके? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, देन असम। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा प्लेन्स में आता है, और इसी प्लेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे हमने पंजाब कहा, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि ये जो एक्सटेंड्स बिटवीन, यहाँ पर गंगा की ट्रिब्यूटरी घग्गर जो है, घाघरा बोलते हैं उसको, ये जो घाघरा जो यूपी में यहाँ पर बिहार में आकर गिरती है, यहाँ पर ये जो रिवर है, और तीस्ता रिवर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो रिवर्स है यहाँ पर गंगा बीच वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका गंगा प्लेन्स में आता है। फिर थर्ड हम जो रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है, दैट ओनली फ्लोज इन आसाम रीजन, जो पूरा का पूरा आसाम रीजन में यहाँ फ्लो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? आसाम प्लेन। ठीक है, तो हमने रिवर्स के अकॉर्डिंग पहले हमने देखो हिमालय जो रिवर वैली है उसका डिमार्केशन पढ़ा, फिर हमने अब समझ में आ रहा होगा कि रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका जानना क्यों जरूरी है। तो ये जो इंडिया के सारे फिजिकल फीचर्स हैं उनके और फॉर्मेशन है, लैंडफॉर्म, उनका रीजन क्या है? डिफरेंट पार्ट है रिवर्स का भी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्रह्मपुत्र रीजन है वो पूरी तरह से आसाम को कवर कर रही है, ये वाला पार्ट, और ये देखिए यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ, ये वाला पार्ट पूरा आसाम का, ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर, तो स्पेशली ये कौन सा एरिया बन जाता है? आसाम प्लेन। ठीक है, अब हम कल जो है डिस्कस करेंगे इस प्लेन्स को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, भाबर, तराई, खादर, बांगर, ये बात करेंगे। भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर बांगर क्या होता है, ये हम कल बात करेंगे। आज की क्लास यही हो रही है।